हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन एंड हाउ आर यू डूइंग गाइस। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू स्टे अलोन live alone in Noida and in Delhi NCR, and also you in this video you will know how to manage groceries by living alone, where to buy them, and also I will be showing you a haul of my groceries, how I manage my groceries in a month by living alone. So keep watching this video till the end. कि मेरे लिए तो दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट बिकॉज अपने पैसे से हार्ड अर्न मनी से जब आप कुछ खरीदते हो अपने लिए, अपना खर्चा निकालते हो, दैट इज़ द मोस्ट प्राउडेस्ट मोमेंट. ऑल दो माई सैलरी नॉट सो गुड, बट आई एम जस्ट हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट आई एम बाइंग इट विथ माई हार्ड अर्नड मनी. सो आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू. और ऐसा नहीं है कि आपका कॉस्ट भी 2000 ही होगा, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन मेरी जो हैबिट है ये पहले से ही है, लाइक फ्रॉम माई फैमिली ओनली. लाइक हम लोग जब भी खरीदते हैं पूरा स्टॉक अप करके खरीदते हैं, लाइक ताकि बाद में प्रॉब्लम में ना आए. तो मेरी हैबिट ऐसे ही है. सो प्लीज़ bear with me and I hope that you enjoy the haul. The first thing that I bought is this bhujia, a big size bhujia, and it is like 1 kilo of bhujia because I keep buying bhujia and even my mother will be visiting soon, so I thought कि बहुत ज़रूरी होगी ये नमकीन ना. सो मैंने 1 किलो ही खरीद लिया बिकॉज देयर वाज एन ऑफर. 1 किलो को एटलीस्ट 150 के करीब था, तो आई वाज लाइक इट्स अ वेरी गुड ऑफर्स, तो मैंने खरीद लिया. सो द फर्स्ट थिंग इज़ भुजिया. द सेकेंड इज़ दिस आटा. आई लव मेकिंग रोटीज़ एंड आई लव ईटिंग आटा, लाइक रोटीज़ एंड चपातीज़ एंड anything to do with grains. तो इसलिए मैंने 5 किलो आटा खरीद लिया. एंड माई मॉम ऑल्सो विल बी कमिंग, सो इट्स गोइंग टू बी enough for 2 months. And the second is biscuit again. I bought the family size biscuit again, and this is from Sun Feast. It is the digestive biscuit. Since my mom, she has like diabetes, and I thought that in the morning when we are about to eat a snack or जब breakfast लेते हैं, तब I thought कि this biscuit is going to be good. Instead of buying small packets every day, it's better that I just buy a big packet. It will be enough. I hope so. It will be enough for a month. So this is it. And by the way, the total of my groceries was around 2000 rupees. And I didn't even have to go. I ordered it online, which was the most convenient thing. And I believe that when you're staying alone in Noida, I believe that is the thing that you need to do is, make use of the online stuff. क्योंकि मैंने offline try किया था. The weather of Noida is so hot and it's so tiring. You will not be able to do that. So even if your shop is just nearby, I would suggest you that make use of online, because that is what I realized after coming. And I bought 2 packets of milk powder because unfortunately मेरे रूम में फ्रिज नहीं है, तो इसी की वजह से I got 2 packets of milk powder, and the prices will be here on the screen. So I bought 2 and it is for 400 grams and 400 grams. I hope this will be enough for a month. And then I bought 4 packets of macaroni. Again there was offer, and I bought 4 packets of macaroni. And as compared to the local shop, it is a little bit more. The price is a bit higher क्योंकि सबसे पहले तो जो लोकल शॉप्स में मिलती है वो है मैदे का मैक्रोनी, और ये जो है दिस मैक्रोनी इज़ मेड ऑफ सूजी, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्दी. एंड आपको पता है मैदा इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ, सो सूजी इज़ समहाउ बेटर. सो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट 4, सो दैट समटाइम्स मैं टिफिन में भी पैक करके ले जाऊँ और ब्रेकफास्ट में भी मैं मम्मी के साथ एंजॉय करूँ, क्योंकि मुझे मैक्रोनी बहुत पसंद है गाइस. I can literally eat every single day. And I bought, again, trying to switch myself to a healthy diet. So I bought 2 ragi packets, 500 grams and 500 grams each, and together it's 1 kilo. So I'm gonna be mixing with the आटा के साथ में मिला के मतलब मैं खाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, क्योंकि apparently रागी जो है बहुत ही healthy है. And I bought 3 packets of कुकिंग ऑयल, बिकॉज जब मैंने एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया था, लास्ट मंथ मैंने 2 लीटर का कुकिंग ऑयल, पास में ही एक होलसेल मार्केट है वहाँ से मैंने ख़रीदा था, लेकिन जो ऑयल की क्वालिटी थी इतना ख़राब था. मतलब कंपनी का नाम शुद्ध मस्टर्ड ऑयल था, मतलब शुद्ध सरसों का तेल था, लेकिन वो किसी भी एंगल से शुद्ध नहीं था. उसमें इंस्टेड पाम ऑयल भी डाला हुआ था, इसलिए वो स्मेल अजीब सा आ गया था. देन आई थॉट दैट आई जस्ट गेट ऑयल फ्रॉम द प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू ऑर्डर, क्योंकि यहाँ ये जो विशाल मार्केट का कुकिंग ऑयल जो है मैंने रियलाइज़ किया है कि द क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड. सो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट 3 ऑयल्स. आई विल बी शोइंग यू अनदर वन. एक्चुअली मैंने वो 4 के मैंने यूज़ कर लिया है, सो आई विल शोइंग यू दैट. सो आई गॉट 3 ऑयल्स बिकॉज आई नो दैट आई एम गोइंग टू बी ईटिंग लॉट्स ऑफ स्टफ.
मैंने ये आटा वाला नूडल भी किया था। पैक ऑफ 4 है बाय द वे, सो 4 + 4 8। सो एक पैकेट में पैक ऑफ 4 आती है, तो 2 पैकेट खरीदी है तो 8। तो आटा नूडल एटलीस्ट यहाँ पे भी थोड़ा सा मैदा तो होता ही है, लेकिन आटा नूडल्स जो भी हो मैदे से तो अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने ख़रीद लिया। एंड प्लस माई मॉम शी रियली लव्स इट। सेवई विच इज़ सेमोलिना, मुझे सेवई भी बहुत पसंद है गाइस। सेवई किसको पसंद नहीं है, राइट? एंड ईजी टू कुक एंड द मोस्ट हेल्थी एंड द मोस्ट ईजीएस्ट ब्रेकफास्ट, तो इसीलिए मैंने एक पैकेट ही लिया है गाइस। विच इज़ मसूर का दाल 1 किलो ये लिया है। एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी क्योंकि मुझे दाल बहुत पसंद है और दाल वगैरह मैं बहुत खाती हूँ। वैसे लास्ट मंथ का जो मैंने दाल लिया था मिक्स मसूर दाल और मूंग दाल, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और ये भी था बिस्किट, जो मैंने बोरबॉन बिस्किट भी मैंने ख़रीदा था। और बाय द वे मैंने ये ग्रोसरी हॉल में ये कंटेनर भी लिया था इन 50 रुपीज़। और ये जो है मार्केट से मैंने लिया बोलते हैं इसको मटरी, मार्केट से लिया था 40 रुपीज़ में। एंड दिस बोरबॉन, और जब मैंने ये ना सबसे स्टील डील है, जब भी आप ख़रीदते हो ना लाइक 2000 या 1000 आपको ना चीनी मिल जाती है। तो मुझे मिली है 2 किलो ऑफ चीनी, बिकॉज मेरी जो आइटम्स है ऑल टुगेदर 2000 की थी। तो आप जब शॉपिंग 1000 की करते हो देन यू गेट 1 किलो ऑफ शुगर। एंड इफ़ यू डू 2000 रुपीज़ ऑफ मतलब परचेज़, तब आपको 2 kgs मिलती है चीनी। मैंने क्लीनिंग में मैंने ये हैंड वॉश भी ख़रीद लिया था। आपको पता है क्लीनिनेस को भी बहुत ध्यान देनी चाहिए, बिकॉज़ वातावरण साफ़ होगी तब जाके आप हेल्दी रहोगे, तब जाके आप काम कर पाओगे, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। जो मुझे 95 या 90 का पड़ा था मुझे। और ये एज़ वेल फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश और हार्पिक, जो ये टोटल 150 का पड़ा था। वैसे मैंने पटरी से बहुत सारे सामान ख़रीदे हैं, लेकिन आज का जो हॉल है जो मैंने आज ख़रीदा है मैं आपको वही शेयर करूँगी, वो मेरे दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी जो टोटल मैंने जो सामान ख़रीदे हैं। क्योंकि अगर मैं शेयर करने लग जाऊँगी ना तो ये हॉल इतना लंबा हो जाएगा, ये वीडियो आप ही बोर हो जाओगे। तो मैं जो आज ख़रीदी हूँ, आज मैंने टोटल 100 रुपीज़ का ख़रीदा है लोकल मार्केट से, और ग्रोसरीज़ लगा के एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ ख़त्म हो गई है। दैट इज़ फॉर वेजिटेबल्स एंड द स्टफ्स विच आई बॉट। और ये ग्रोसरीज़ का तो 2000 एंड प्लस 500 2500 गॉन गाइस। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 1000 भी हम लोग रीच नहीं हुए हैं। आप लोगों को कंटेंट इतना पसंद भी आया तो सब्सक्राइब करने में इतना कंजूसी क्यों? सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे मुझे बहुत हेल्प होगी। मैं इतने मतलब नाइट शिफ्ट करके मैं इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ जस्ट फॉर यू, इतना मेहनत करती हूँ, सो मेहनत का फल तो मिलनी चाहिए। और जो ऑनलाइन सर्विसेज की मैं बात कर रही थी वो थी विशाल मेगा मार्ट। और पता है द बेस्ट पार्ट अबाउट विशाल मेगा मार्ट ऑनलाइन इज़ दैट सब ऑफर सेम ही होती है एक तो, एंड सेकेंड में देयर इज़ नो चार्जेस फॉर COD, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी जब करते हैं ना कोई भी चार्जेस नहीं होती हैं। प्लस उन लोगों की अलग से उन लोगों की ओन ब्रांडिंग होती है, जैसे कि फर्स्ट क्रॉप हो गया एंड देन इमली ट्री, तो वहाँ से वो ब्रांड्स अगर खरीदते हो तो देर आर एक्स्ट्रा ऑफर्स, सो इसीलिए मेक यूज़ ऑफ दैट। वैसे देर आर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज एज वेल आजकल, जैसे कि ब्लिंकिट हो गया, आप ब्लिंकिट से भी खरीद सकते हो। लेकिन मैंने सुना है कि ब्लिंकिट में थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपके हिसाब से, लेकिन अगर आपकी सैलरी अच्छी है देन डेफिनेटली यू कैन गो विद इट, एंड आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। एंड देन ब्लिंकिट इज़ मोर फास्ट टू बी ऑनेस्ट, और थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन भाई 2 to 3 आवर्स ले सकता है, लेकिन इट्स द बेस्ट। आई मीन विशाल मेगा मार्ट इज़ द बेस्ट। और सेकेंड इज़ यू कैन मेक यूज़ ऑफ बिग बास्केट एंड ग्रोफर्स हो गया। एंड देन जियो मार्ट का अलग से ऑनलाइन भी है, फिजिकल स्टोर भी है और ऑनलाइन भी है। एंड देन ऑल्सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ DMart, मेक यूज़ ऑफ दिस एप्स एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी सबसे पहले तो, एंड मनी एज वेल। वैसे आप अगर जैसे कि होलसेल से ख़रीदते हो तो मे बी द प्राइस विल बी सिमिलर, और मे बी आपको कम में भी मिल सकती है, लेकिन यार एक तो आपकी टाइम और एनर्जी भी तो चाहिए, राइट? और अगर आप जॉब कर रहे हो या आप घर में भी रह रहे हो और आपको उतना, आप घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलते हो, आप उतना लाइक हेवी वेट्स वगैरह कैरी नहीं कर सकते हो, आपको दिक्कत होती है, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू मेक यूज़ ऑफ द ऑनलाइन स्टोर। और सब्ज़ी वगैरह तो मैं लोकल मार्केट से ही ख़रीदती हूँ, मतलब जब मेरी वीकेंड्स होती है तब मैं जाके अपने आप से जाके वेजिटेबल्स वगैरह ख़रीदती हूँ, बिकॉज दैट इज़ माई प्रेफरेंस। हाउएवर ऑनलाइन स्टोर से आप ख़रीद सकते हो बेझिझक, लेकिन मुझे एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू वेजिटेबल्स, अगर मेरे हाथ से मतलब अगर मैं नहीं चुनती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। एंड मोर ओवर लाइक मेरी वीकेंड जो है रूम साफ़ करने में, कुकिंग वगैरह करने में और लॉन्ड्री वगैरह करने में ही
टाइम चली जाती है, तो एटलीस्ट इट विल बी लाइक मी टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम माई रूम, सो आई लव इट। तो ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मुझे सब्ज़ी की शॉपिंग अपने आप से करनी पसंद है। वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो ऑनलाइन से भी। एंड ऑल्सो मैंने लोकल मार्केट से भी बहुत सारी चीज़ खरीदी है। जैसे कि अगर आप नोएडा में आते हो ना, जो पटरी होती है, पटरी में जो सामान वगैरह वो जो हर एक माल की सामान वगैरह वो जो सेल करती है, प्लीज़ मेक अ क्लोज आई फॉर दैट। जब भी आप देखते हो ना, पूरा अलर्ट करके वहाँ पे जाके आप ख़रीद लो, बिकॉज सारी सामान जो है ओनली 20 रुपीज़ में होती है। और अगर इफ़ यू आर पर्सन हु इज़ अ स्टूडेंट ट्राइंग टू लिव अलोन, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स वगैरह भी बहुत सारे अकेले रह रहे हैं रेंट में बिकॉज ऑफ देयर प्रेफरेंस, क्योंकि किसी को सेल्फ स्टडी करना पसंद है और किसी को रूममेट के साथ रहना नहीं पसंद है, जैसे कि मैं। एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, एंड आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू स्टे अलोन। यू कैन डेफिनेटली स्टे विथ योर रूममेट्स एज वेल, बट पीपल हु वांट्स टू स्टे अलोन, हु आर प्लानिंग टू बाई स्टफ्स इन चिप, तो डेफिनेटली आप ना वो कर सकते हो। जो पटरी में जो भैया सेल करते हैं ना, जो वो 20-20 रुपये में, तो आप वहाँ से सामान वगैरह ख़रीद लेना, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे सामान मिल जाती हैं जो आपको ना मॉल्स वगैरह में एक्सपेंसिव में मिलती है। जितना भी करो उससे कम में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, एंड दैट इज़ द मोस्ट बजट फ्रेंडली। एंड बीइंग अ स्टूडेंट और अ पर्सन हु इज़ वर्किंग कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल एंड इकोनॉमिक फॉर यू। तो आपको वो भी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा है वहाँ से। मैंने बहुत सारे चीज़ खरीदी है। वैसे जब भी मैं देखती हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई बाय, बिकॉज यार 20 रुपीज़ होती है, तो इट्स लाइक यू आर हेल्पिंग देम एज वेल, और अपने आप को भी आप हेल्प कर रहे हो, तो डेफिनेटली मेक यूज़ ऑफ दैट। तो मैंने सबसे फर्स्ट आइटम जो मैंने ख़रीदा है वो है ये हॉटकेस टाइप। मैंने इनिशियली यहाँ पे फूड वगैरह स्टोर करने के लिए, एंड देन ऑयल्स वगैरह, कुकिंग ऑयल्स स्टोर करने के लिए मैंने ख़रीदी है। एंड कुछ इस तरह की है, और मटेरियल भी ना उतना ख़राब नहीं है, मतलब अच्छी है, मतलब ठीक है प्राइस के हिसाब से। प्लास्टिक की क्वालिटी जो है बहुत ड्यूरेबल है। और सेकंड में ये है जो प्लेट, ऐसे वाले प्लेट मैंने दूसरे डिज़ाइन और शेप में मैंने ख़रीदी थी, और ये सेकंड प्लेट है क्योंकि मम्मी आने वाली है, तो मम्मी के लिए भी। और बाय द वे गाइस, मुझे ये चिमटा जो होता है, ये टोंग ओनली 20 रुपीज़ की मिली। इतनी हैवी क्वालिटी की एल्युमिनियम की है और 20 रुपीज़ की मिली। और मुझे नहीं पता ये यूज़ होगा या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा यार 20 रुपीज़ में क्या ही मिलता है आजकल, मैंने ये ख़रीद लिया, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ों में तो काम आ ही जाएगी, जैसे कि रोटी सेकने में। वैसे रोटी तो मैं तवा में ही सेकती हूँ। और सेकेंड है ये ट्रे, 20 रुपीज़, दिस इज़ ऑल्सो 20 रुपीज़। वैसे ये ट्रे थोड़ी छोटी है, लेकिन थोड़ा काम आएगा। मुझे लगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा, तो इसीलिए ये भी मैंने ख़रीद लिया। और मुझे ना एवरी टाइम वेजिटेबल्स साफ़ करने में बहुत ही दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैंने ये ख़रीद लिया। आज लकीली सिर्फ एक ही पीस बची थी, और मेरा लक इतना अच्छा था कि मुझे मिली गई, और जैसे ही मैंने देखा मैंने ख़रीद लिया। सो दिस इज़ इट। वेदर जो है यहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है, प्लस आप काम करते हो, पसीना निकलता है। और जहाँ मैं होम टाउन में थी, पता नहीं इफ़ यू आर फ्रॉम हियर इटसेल्फ, इफ़ यू आर लोकल, देन आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी, क्योंकि मैं जहाँ से मैं आई हूँ नॉर्थ ईस्ट एरिया से, तो वहाँ का वेदर वगैरह बहुत ही डिफरेंट है। और जब मैं यहाँ पे आई थी लाइक अराउंड जून, उस टाइम 45 डिग्री हो गई थी। इट वाज सो अनबेरेबल ड्यूरिंग दैट टाइम, इट वाज सो हॉट। और अनफॉर्चुनेटली मेरे रूम में ना एसी है ना कूलर है, सिर्फ फ़ैन है, और मैं कूलर भी नहीं ले सकती, क्योंकि आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी स्टेइंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम और नॉट, क्योंकि मुझे यहाँ का वेदर वगैरह बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रही है। बट देयर इज़ अगेन अ डिफरेंट केस, एंड आई विल बी शेयरिंग दैट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम अनश्योर कि मैं नोएडा में कब तक रहूँगी। सो बिकॉज ऑफ दैट आई कैन बाय कूलर और एसी। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं सर्वाइव कर रही थी। आप सोचो, एक ठंडी जगह, या एक लाइक ठंडी भी नहीं यार, टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर के लोग यहाँ पे आए, एंड देन सर्वाइविंग इन दिस रूम विच इज़ वेरी स्मॉल। आपको अगर इन केस मैं रूम का व्यू दिखाती हूँ, तो आई विल बी शोइंग यू कि यहाँ पे वेंटिलेशन भी नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन, एंड देन एक ही विंडो है जो कि फंक्शनल भी नहीं है, एंड प्लस ऊपर से ये टेम्परेचर, एंड रूम इतनी गर्मी होती थी। सर्वाइविंग इन अ 45 डिग्री to 48 डिग्री टेम्परेचर was so difficult for me, but anyways I did। और अब तो टेम्परेचर थोड़ा सही ही है, मौसम थोड़ा ठीक ठाक ही हो रखी है, क्योंकि बारिश हो रखी थी, तो it's fine। but the last 2 months was so difficult for me, but I did survive, and I'm very happy, and I also love your responses। आपकी जब responses और support मुझे मिलती है ना, then
really enjoy it. Please keep supporting and please keep subscribing to my video. And I'm also about to invest some money in buying a good camera, so bear with me with the quality of the video. So, and then please keep watching this video till the end, and also please keep subscribing and also share this video to each and every one of your friends जिसको मतलब अकेले रहना है, और जो लड़की है या लड़का है जिसको नोएडा में रहना है. This video is going to be very beneficial because I will be uploading lots of videos regarding living alone in Noida and how to manage the expenses, how to get a room, and how my experiences is. I'm going to be sharing it with you, so please be with me and also keep supporting me and share this video to all of your friends and your families. Keep subscribing and I love you guys. Bye.